Hello, everyone. Very good morning. Thanks a lot for coming over on a Saturday morning. Uh, Cheers to your enthusiasm. Really, really loving that. Coffee, I hope सबने ले लिया है. नहीं लिया है तो ले लो. Sure. I'll get started. I guess we have quite a few DevOps folks here and some developers as well, right? So quick show of hands. DevOps. And devs. And somebody who does both. Can do both. That's great. Sure. Myself, Vijay, I am founder at CubeAPM. CubeAPM is an observability platform, much like Grafana, Elastic, New Relic. So it helps you monitor your applications, infrastructure, like optimizations, alerting, all those things. Right? I guess all of you are pretty familiar with the domain, so I wouldn't go much into the details of that. And prior to CubeAPM, which I started early last year, I was CTO at BharatPe. And before that, I was head of engineering at head of engineering at Grofers, which is now Blinkit. So yeah, quite a few stories, war stories as well as peace stories that I can share, but we'll keep that for later. So we'll focus on the topic of the day, which is cost optimization, right? And other speakers will talk about other aspects of cost optimization. I'll focus more on how to cost optimize your observability, right? Because this also becomes quite a significant pain point. I'm sure a lot of you would have experienced it already, right? So quick question, how many of you have faced the problem of cost escalation in your observability stacks? So you faced and you faced. Right? Can we have Mike? Just wanted to quickly understand like what was the challenge, what happened, and how did you sort of brought things under control? Yeah. So right now we are having I think 60K per month for our observability cost. Earlier it was 90K. We did something to primarily the thing was like we have to reduce the cost, but doesn't know how, where to start, and because you have to enable the headers to get the request body, response body if something is happening, but you cannot allow all the logs at every time, every single hour. So we did some strategies. We reduced the headers. We somehow optimized it. So we did something on the New Relic as well, like removing the headers, removing some entries, asking developer to define the logs in JSON rather than strings because they are not aware like well, how to send those. Okay, so these strategies we did at that point of time. Like and I think we are getting same challenges like it. All right. All right. ठीक है. Prakash, can we have a whiteboard if it's available? All the whiteboards are fixed. Oh, all right. No problems. We'll do that. Yeah. ठीक है. We've covered that. So when we talk about observability, there are three main components of observability: metrics, traces, and logs. Right? There are some other components as well, but most of us, I'm assuming, are relying on these three aspects or the three pillars as they're called. Right? So we'll focus more on these three aspects and how do we optimize each of them individually. Right? And by the way, let's keep the session very, very interactive. So if you have any questions, anything is not clear, or if there's some interesting point you want to share, right? Or even if you have a counterpoint, right? I would in fact encourage, right? If you disagree with something that I've just said, let's just speak up and have an objective discussion about that. Because everybody comes out more knowledgeable out of those discussions. Yeah. So before I start talking about individual tactics on how to reduce cost, how to optimize cost, I think there's one important point I want to make. And if there's only one takeaway which you can have from this discussion, it is on this slide. Right? We can forget about individual tactics, but I think this is a very, very important point to note that
normally when we talk of cost optimization, most of the times it happens in an ad hoc manner. Right? Organization एक अपनी पेस पे चल रहा है, फीचर्स बन रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, सडनली एक मैंडेट आया, अरे कॉस्ट कम करना है, राइट? एंड देन एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट कि कॉस्ट में क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं. एक महीना 2 महीना लगाया, कम कर दिया, एंड देन थिंग्स आर बैक टू लाइक हाउ दे वर अर्लियर. चलो फिर से फीचर बनाते हैं, फिर से ग्रोथ आती है, राइट? एंड देन वी सॉर्ट ऑफ फॉरगेट अबाउट कॉस्ट. और वी फील दैट वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव. 90 के से 60 के कर लिया, अभी 60 के चल रहा है, ठीक है, दैट व्हिच इज अ गुड आउटकम. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट अ गुड आउटकम, बट वी शुड आल्सो डू प्रोबेबली 5-10% एक्स्ट्रा एफर्ट which will serve us very very well in the long run. And what is that 5-10% extra effort? Is to bring observability to your costs also, right? And what does observability fundamentally mean? That information should be available. Like that is the first requirement of observability. अगर कोई कभी भी जानना चाहता है कि कितनी कॉस्ट है, right? That information should be readily available. Right? Let's say your CEO wants to know, your CTO wants to know, or you yourself want to know, right? It should not be that अच्छा वो dig out करना पड़ेगा, 4 स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेंगी, फिर वो चलानी पड़ेंगी, फिर पता लगेगा कितनी कॉस्ट है, right? That information should be easily accessible, right? Ideally there should be a dashboard somewhere which should tell you that this is the cost, right? It need not be 100% accurate. एक reasonable एक estimate हो जिसको लेके हम काम कर पाए, that is good enough. It should give us guidance कि roughly ये चल रहा है. Right? Like I've taken an example here. Let's say you want to estimate the overall cost of your logging. Right? आपको जो भी log provider है उसका बिल आ रहा होगा, उसको आप ले सकते हो, या फिर आप open source चला रहे हो, self hosted चला रहे हो, जिस इंफ्रा पे चला रहे हो उस इंफ्रा की कॉस्ट निकाल सकते हो. Right? There would be some additional cost, वो data transfer की कॉस्ट होगी, all those things. It's okay. You take some estimate, that will work. Right? That is first level of information. Second level of information is who are the people who are responsible for working on that cost. Right? अब उसको optimize करना है या जो भी करना है, कम करना है, who are the people who are responsible for taking action, right? And most of the times logs किसके लिए generate होते हैं? Developers के लिए generate होते हैं, right? Applications के logs होते हैं, उस application के developers के लिए generate होते हैं. So कोई application अगर ज्यादा logs बना रही है तो वो optimization किसको करना होगा? जो application की development team है उसको करना होगा, right? So those people need to know what their basis is, right? कि कितना cost अभी आ रहा है, right? So you have an overall log aggregation system. You should be able to tell all the different teams कि देखो total cost इतना है, इसमें आपका contribution इतना है, right? Because you are responsible for your contribution, right? अब 10 teams हैं जो एक shared log aggregation framework को use कर रहे हैं, overall cost के लिए responsible कोई नहीं है, सब अपने individual cost के लिए responsible है. Right? They can only work on their individual costs, right? So they should also be readily able to see कि हमारी cost कितनी है, right? अभी कितनी है, हमने कुछ काम किया उससे कितनी कम हो गई. All this information should be easily available, right? जितना easily ये information accessible होगी उतना जल्दी action drive कर पाएंगे सब लोग, right? Which is the second aspect, that एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट? एंड अगेन बहुत प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, एक एस्टिमेट चलेगा, स्प्लिट करने के लिए भी एस्टिमेट चलेगा. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट जो भी है उसमें हम हर एप्लीकेशन का कैसे लगाएंगे, मोटा मोटा देख लो कि एक एप्लीकेशन कितने लॉग लाइन्स पब्लिश कर रही है, डिवाइड कर दो, टोटल लॉग लाइन्स कितने हैं, एप्लीकेशन के लॉग लाइन्स कितने हैं, ये आपका एस्टिमेट आ गया. नाउ दिस एस्टिमेट कैन बी इनएक्यूरेट. कोई हो सकता है बहुत लंबी लाइन्स पब्लिश कर रहा हो, कोई हो सकता है छोटी लाइन्स पब्लिश कर रहा हो, राइट? एंड इफ यू कैन गेट टू द नंबर ऑफ बाइट्स, ग्रेट, इजीली कर सकते हो तो बहुत बढ़िया. बट नहीं भी कर सकते तो डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू डू दैट. पहले ये तो निकाल लो, राइट? एक आइडिया मिल जाएगा, इज बेटर देन हैविंग नो आइडिया, राइट? एंड देन यू कैन ओवर टाइम आइटरेट, राइट? सो ये विजिबिलिटी बन जाएगा. एंड द थर्ड थिंग इज once you have the measures, once you have the dashboard, it is also very very easy to set up some alerts also on top of this, राइट? आपने वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, एक दिन और लगाओ, कुछ एक क्रिटिकल अलर्ट्स भी सेटअप कर दो हर एप्लीकेशन का कि सडनली किसी का जंप आ रहा है, राइट? डे ऑन डे बेसिस पे आ रहा है या आर ऑन आर बेसिस पे आ रहा है, जिस भी ग्रैनुलरिटी पे आप ट्रैक करना चाहते हो, शूट ऑफ एन ऑटोमेटेड अलर्ट, राइट? पर्टिकुलरली लॉग्स के साथ ही एग्जांपल लूं तो क्या होता है कि कोई रिलीज गई, उसमें हॉट पाथ पे कोई एक नई लॉग लाइन आने लग गई एंड सडनली द वॉल्यूम ऑफ लॉग्स इज नाउ डबल, राइट? नाउ डोंट अज्यूम कि कोई उसको दिन रात बैठ के देख रहा होगा डैशबोर्ड को,
डैशबोर्ड बना दिया बड़ी अच्छी बात है, बट लोग आके नहीं देखेंगे अपने आप, राइट? तो आप अलर्ट लगा दो, कोई अलर्ट होगा, फिर लोग आके डैशबोर्ड पे देख लेंगे कि क्या हुआ है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल टेक अ लिटिल इंक्रीमेंटल एफर्ट, बट आप एक बार कर लोगे तो you'll have a very good structural basis on which to build your efforts for future, right? So which is why, like, I'll again say that this is the most important takeaway from our discussion. Individual tricks तो बहुत सारी आप already जानते हो, गूगल पे भी मिल जाएंगी, right? मैं भी of course बताऊंगा जब आया हूं तो जी। So let's talk about logs. ठीक है, सबसे पहले लॉग्स को एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट के लिए सबसे ज्यादा बदनाम लॉग्स ही हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लॉग्स से ही होती है कॉस्ट की। उसका एक रीजन भी है, एक्चुअली दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि लॉग्स आर वेरी इजी टू जनरेट। सबने प्रोग्रामिंग 101 में प्रिंट एफ तो सीखा ही होता है, प्रिंट एफ या console.log या जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ चॉइस में पॉपुलर एक आउटपुट जनरेट करने का तरीका होगा, तो वो सबको आता है, राइट? एंड इट इज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट, राइट? एंड इट इज ऑल्सो वेरी फ्री फ्लोइंग कि आपने लॉग लाइन डाल दी, फिर आप अब ब्राउज करते रहोगे आउटपुट में, आप देखोगे क्या प्रॉब्लम आई है, राइट? विद मेट्रिक्स एंड विद ट्रेसेस एज वेल, द थिंग इज दैट यू हैव टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? आपको कुछ एक क्वेरी बना के डालनी पड़ती है, फिर उस क्वेरी का रिस्पॉन्स मिलता है, तो यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ की प्रॉब्लम कहां हो सकती है, राइट? बट द ब्यूटी ऑफ लॉग्स इज, आ रहे हैं, आप एनालाइज करते जाओ, राइट? एंड आपको कुछ दिख जाएगा वहां पे, राइट? सो which makes logs very powerful also, easy to use also, but the problem is कि बहुत बार अब्यूज भी होता है बहुत इजीली, राइट? बहुत सारी लॉग लाइंस पड़ी हुई हैं जो यूजफुल नहीं है, अब आउटपुट जनरेट करे जा रही हैं, राइट? तो कैसे कम कर सकते हैं इसको? वन टेक्निक इज सैम्पलिंग। अब थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लॉग्स और सैम्पलिंग की बात जनरली साथ में करी नहीं जाती है, बट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस मींस पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉग्स। एक टिपिकल सिनेरियो लेते हैं, हम कोड लिख रहे हैं, कोड में कहीं पे कुछ एक एज केस हम हैंडल कर रहे हैं, राइट? कुछ अनएक्सपेक्टेड इनपुट आ गया लेट से, और हमने वहां पे क्या किया, कोड लिखते समय वहां पे एक लॉग लाइन लिख दिया कि कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड इनपुट आया है या कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई है तो ये लॉग लाइन प्रिंट कर दो, ताकि हमें पता लग जाए क्या हुआ है, विद सम डंप ऑफ सम वेरिएबल्स एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन, राइट? हमने लिख दिया, बिल्कुल सही है, राइट? नाउ दैट लॉग लाइन हैपेंस टू बी इन द हॉट पाथ। हॉट पाथ क्या होता है? Can somebody tell me what is generally the meaning of hot path when we talk about code? Anyone wants to take a shot? Educated guess? कोई बात नहीं, गलत हुआ तो। Exactly. Right. The piece of code where execution is higher, right? Simple language में बोले, थोड़ा एक कॉन्क्रीट एग्जांपल ले लेता हूं ताकि सबको और क्लियर हो जाए। एक अपने कोड में इफ एल्स लगाया हुआ है, राइट? सो देयर इज एन इफ ब्लॉक ऑफ कोड एंड देयर इज एन एल्स ब्लॉक ऑफ कोड, राइट? एंड देयर इज एन कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन व्हिच टेल्स कि इफ में जाना है कि एल्स में जाना है, राइट? नाउ दैट कंडीशन हैपेंस टू बी सच कि 99.99% आप इफ में जाओगे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, राइट? लेट्स से हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं 1 से 1000 की रेंज में, राइट? अब 1 से 999 हुआ तो मुझे इफ वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, 1000 हुआ तो मुझे एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, राइट? या भारत पे कंटेक्स्ट से एक एप्लीकेशन एग्जांपल लेता हूँ, यूपीआई की पेमेंट है, पेमेंट का अमाउंट 10,000 रुपए से कम है तो एक नॉर्मल फ्लो है, उसमें जाने दो। 10,000 से ऊपर है तो वही गड़बड़ है, ये यूपीआई पे इतनी बड़ी पेमेंट बहुत कम ही होती है, तो उसके लिए कुछ एडिशनल चेक्स परफॉर्म करने हैं, right? So the if part of code will be the hot path, क्योंकि the volume of transactions which is hitting Bharat Pay systems is very high, right? And वो mostly सारी if में जा रही होंगी, right? तो वो hot path है, and else वाला जो है वो hot path नहीं है। So a log line written in else part will not be printed a lot of times, but a log line written in if part will be printed a lot of times, right? वो कोड को कोई स्टैटिकली देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि वो तो भाई 4 लाइनें इफ में लिखी हुई है, 4 लाइनें एल्स में लिखी हुई हैं,
राइट, ये नहीं समझ में आएगा कि इम्पैक्ट कितना डिफरेंट हो सकता है. बट इफ यू पुट समथिंग इन द इफ पार्ट ऑफ कोड, you'll generate a lot of log output, right? And that will proportionately impact the cost. ये कॉस्ट, परफॉर्मेंस, सारी चीजें इंपैक्ट करेगा. एल्स में कुछ लिखोगे तो वो कम इंपैक्ट करेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय हॉट पाथ. तो हॉट पाथ में अगर हमको कोई लॉगिंग लगानी है, एंड दिस इज ऑल नॉट टू से कि लगानी नहीं चाहिए, जरूरत है तो जरूरत है. सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है वही आंसर करनी है, वही एड्रेस करनी है. ऑफ कोर्स आपको लग रहा है कि एक तरीका है जिससे मैं एल्स वाले पार्ट में लगा के भी सेम इफेक्ट या सेम नॉलेज अचीव कर सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स एल्स में ही लगाओ. लेकिन अगर इसमें भी लगानी है तो लगा लो, कोई बात नहीं, राइट? बट देन एक्सप्लोर वन मोर थिंग विच इज सैम्पलिंग. सैम्पलिंग में क्या करते हैं, सी इफ यू वांट एवरी सिंगल लॉग लाइन, राइट, और इफ यू वांट अ स्टैटिस्टिकल सैंपल ऑफ इट, दैट विल बी इनफ, राइट? अब मान लो वो तो 1 मिनट में 10,000 बार कॉल होता है इफ वाला ब्लॉक, राइट? तो आपको 10,000 की 10,000 लॉग लाइन्स चाहिए, या यू वांट टू ब्रॉडली अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है, राइट? एंड ऐसे सोच के देख सकते हो कि 10,000 लॉग लाइन्स आ भी गई तो मैं मैन्युअली बैठ के देखने तो नहीं वाला 10,000 लॉग लाइन्स. आई विल प्रोबब्ली लुक एट ओनली 5-10 एंड उससे मुझे कुछ पैटर्न समझ में आ जाएगा, राइट? तो व्हाई प्रिंट 10,000 लॉग लाइन्स? प्रिंट ओनली दोज 10, 15, 20, मे बी 100 लॉग लाइन्स, राइट? तो उसके लिए एक टेक्निक होती है सैम्पलिंग. इसमें क्या करते हैं, सिंपल रूल लगाते हैं, टाइम बेस लगा देते हैं कि एवरी 1 मिनट में प्रिंट एट मैक्स इतने लॉग लाइन्स फॉर दिस स्टेटमेंट, राइट? तो एक पर्टिकुलर कोई केस बना, उसमें आपने लॉग लाइन लिख दी और साथ में लिख दिया कि ये अगर 10,000 बार हिट हो रहा है तो 10,000 लॉग लाइन्स मत प्रिंट करो, 1 मिनट में मैक्सिमम 10 बार प्रिंट करो, फिर रुक जाओ, फिर इग्नोर करते रहो उसके बाद, राइट? फिर उसके बाद वो ब्लैक बॉक्स है, उसमें कोड ने एग्जीक्यूट किया बट कुछ हुआ नहीं आउटपुट, राइट? तो उससे क्या होगा कि आपका थ्रॉटल हो जाएगा आउटपुट एंड यू विल स्टिल गेट इनफ सैंपल्स. 1 मिनट में 10 सैंपल आ गए, इज लाइक सफिशिएंट डीबगिंग के लिए, राइट? नाउ हाउ डज दिस वर्क इन प्रैक्टिस? इसको इंप्लीमेंट कैसे करना होता है? हम सब लोग मोस्टली डायरेक्टली लॉग लाइन्स नहीं लिख रहे होते, एज इन कोई ना कोई लॉगिंग लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं. तो पहले तो जो भी आप लॉगिंग लाइब्रेरी यूज कर रहे हो उसमें एक्सप्लोर करो. अ लॉट ऑफ लॉगिंग लाइब्रेरीज हैव सपोर्ट फॉर दिस थिंग. तो उसमें एक्सप्लोर करो कि सैम्पलिंग का, रेट लिमिटिंग का, थ्रॉटलिंग का कोई फंक्शनैलिटी अवेलेबल है क्या. अगर होगा अवेलेबल तो मोस्टली ऐसे काम करता है कि आपने एक सेंट्रल लेवल पे एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद आपको अपने इंडिविजुअल लॉग लाइन में कुछ नहीं लिखना, वो जो नॉर्मल जो चल रहा है वही चलेगा. एंड इवन इफ यू हैव टू इंप्लीमेंट कस्टम लॉजिक, यू शुड इंप्लीमेंट इट इन एग्जैक्टली दिस मैनर कि एक सेंट्रल लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन हो, क्योंकि हर लॉग लाइन के आगे आप पूरा लॉजिक लिखोगे तो वो आपका कोड बहुत क्लमजी हो जाएगा, फिर वो मैनेज नहीं होगा. तो बेटर है कि आप सेंट्रल लेवल पे एक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ एंड दैट शुड देन इंप्लीमेंट sampling, right? This is one. The other thing is I recommend sampling on individual keys, right? अब आपका जो लॉगिंग फ्रेमवर्क है उसका जो आपने लॉगर इंस्टेंस बनाया होगा, वही लॉगर इंस्टेंस आप बहुत सारी जगह यूज कर रहे होगे, राइट? अब रेट लिमिटिंग जब आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी लॉग लाइन्स एक ही पाइप में से निकल के जा रही हैं और मान लो आपने लगाया कि 1 मिनट में 10 प्रिंट होनी चाहिए, तो वो ग्लोबल लेवल पे 10 प्रिंट करके उसके बाद फिर वो बैठ गया, राइट? अब 2 डिफरेंट क्लासेस थी या 2 डिफरेंट पीस ऑफ ब्लॉक थे, एक ने लॉग्स प्रिंट करे, दूसरे वाले को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, राइट? सो दिस विल बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक, राइट? तो उसकी नेम स्पेसिंग कर दो रेट लिमिटिंग के लिए कि एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के लिए इंडिविजुअली रेट लिमिटिंग लगानी है, राइट? टिपिकली द वे इट वर्क्स इज यू गिव अ सर्टेन की टू ईच लॉग स्टेटमेंट, राइट? एंड फिर जो सैम्पलर है आपका या जो रेट लिमिटर है वो उस की को पकड़ के इंडिविजुअली देखेगा कि अच्छा इस की के लिए रेट लिमिटिंग लगाई है तो इस की के लिए मैसेजेस ब्लॉक कर रहे हैं, बाकी सब नॉर्मल चलते रहेंगे, राइट? अदरवाइज यू लूज अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल्सो. फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बोलोगे बेकार है, हटा दो इसको. देखिए, I want to quote one. हाँ, What happened was with one of our clients, they did the sample. So what they did was they had, let's say, 50 pods done for their own application. To sample the log, what they did was they enabled the library of logger in 1 or 2 pods. अच्छा. I tried to explain them that this is not the right way to get samples from the हाँ. logs because you're only actually
for picking up the sample from a couple of logs in it. हाँ And that might not be the true sample for the entire set of logs. हाँ So, is this the kind of practice? So, I've observed this with two of our clients, and I've tried to explain them. Fortunately, the POC did not work through, and they did not do this. But these sort of sampling practices are also there just to reduce the cost. Which is not very effective. Which is not very. Ultimately, you will be using all the logs that are very useful for you. Yes. So I agree with you there. My general recommendation is 99% of the time you should not follow this approach to sampling. Right? You should have all the pods execute same logic. And actually ये सिर्फ logs के context में नहीं होता, ये observability के context में भी काफी लोग करते हैं कि न्यूरेलिक लगाया हुआ है, कॉस्ट बढ़ गया तो एक ही पॉड से डेटा भेजेंगे, न्यूरेलिक पे सबसे नहीं भेजेंगे. Right? Of course reduces the cost, but there are some downsides to it also which we should understand. Right? Once we understand what are the trade-offs, what are the risks, and then that's a conscious call, that is much better. Right? And there are certain scenarios जहाँ पे acceptable है, but we should be careful, and unless we are very sure, by default I would recommend you will be much safer if you apply uniform logic across your pods and don't have कि किसी पॉड में कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी पॉड में कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है. दो लेवल पे चैलेंजेस हैं उसके साथ. एक तो ये कि मान लो कुछ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो एक पॉड पे आ ही नहीं रहा, राइट, एंड दिस विल हैपन. एक्चुअली उतना रेयर नहीं है जितना आपको लग रहा है. इफ योर ओवरऑल रेट ऑफ दैट सिनेरियो हैपनिंग इज नॉट हाई, राइट, आप अज्यूम करते हो सब पॉड्स पे सेमी लॉजिक चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो सब पे ही होगी, बट मान लो प्रॉब्लम होती है 1000 में से एक रिक्वेस्ट में है. अब वो एक रिक्वेस्ट जरूरी थोड़ी है आपने जिस पॉड पे कॉन्फ़िगर किया उसी पे ही हिट करेगी, वो किसी भी पॉड पे हिट कर सकती है. सो विच इज वेयर आई वाज सेइंग, इफ यू नो फॉर श्योर कि भाई जो प्रॉब्लम मैं टारगेट कर रहा हूं वो इतने हाई वॉल्यूम में है कि वो सब पॉड्स पे आ ही जाएगा, देन इट इज ओके. बट अनलेस यू आर श्योर ऑफ दैट, ट्राई टू कीप द लॉजिक अक्रॉस ऑल योर पॉड्स सो दैट वो कहीं पे भी आए वो कैच हो जाए. दैट इज वन रीजन. द अदर रीजन नथिंग रिलेटेड टू कॉस्ट और ऑब्जर्वेबिलिटी एज सच. With the whole automated infra thing in place, managing a set of uniformly configured pods is much easier than managing heterogeneously configured pods. वो उससे आपकी पाइपलाइन में और 10 जगह फिर आपको हैक्स लगाने पड़ेंगे जिसका कोई फायदा नहीं है. अगर आप होमोजीनियस कॉन्फ़िगरेशन रखते हो तो योर ओवरऑल पाइपलाइन विल बी मच सिंपलर. तो आपको ओवरऑल इंफ्रा की कोड की मैनेजेबिलिटी will be like much better if you keep uniform configuration across all your pods. Right? ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. सैम्पलिंग हमने डिस्कस कर लिया. देन द नेक्स्ट इज रिटेंशन. राइट, वेरी वेरी इजी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि लॉग्स में भाई एक हफ्ते का लॉग रख रहे थे, कॉस्ट ज्यादा हो गई, एक हफ्ते का नहीं रखेंगे, 3 दिन का रखेंगे. इजी टू डू, इमीडिएट इम्पैक्ट. राइट, परफेक्टली वर्क्स. यू जस्ट नीड टू सी कि कितना आपको, देयर इज अ ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व्ड. राइट, आइडियली आप सारे लॉग्स रखना चाहोगे इनफाइनाइट टाइम के लिए, बट देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, सो यू विल डू सम ट्रेड ऑफ. भी डेवलपर बोलेगा अच्छा इतने टाइम के तो चाहिए मेरे को. राइट, डेवऑप्स पर्सन विल से कि भाई इतनी कॉस्ट है देख लो. राइट, एंड दिस इज वेयर एक्चुअली एनेबलिंग डेवलपर्स टू ओन देयर कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग देम ऑल दीज मेट्रिक्स मेक्स द कन्वर्सेशन मच इजियर. भाई देख लो तुम्हारी कॉस्ट है. राइट, तुम्हें ऑप्टिमाइज करनी है, तुम रिटेंशन रखना चाहते हो किसी और तरीके से ऑप्टिमाइज करो. फिर डेवलपर खुद ही आके बोलेगा भाई रिटेंशन ही कम कर दो, बाकी में मेहनत करनी पड़ेगी. Right, so one way is to simply like keep logs for lesser duration. The other is also cold storage. And what is meant by cold storage is that there is some part of logs which is like actively indexed. तो उस part of logs पे अगर आप query करोगे तो आपको फटाफट result मिल जाएगा. There is some part of log पे usually like आप बोलो कि 3 दिन के logs हम active indexing में रखेंगे, उसके बाद के logs हमारे unindexed रखे हैं, जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकाल के फिर आपको आपकी क्वेरी को आंसर कर देंगे. राइट, नाउ द थिंग इज इट शुड नॉट रियली बी मैनुअल एफर्ट, एंड देयर आर सिस्टम्स अवेलेबल. आजकल काफी सिस्टम्स है लॉग मैनेजमेंट के जो खुद ही इंटरनली मैनेज कर लेते हैं. यू टेल देम द लिमिट्स कि 3 दिन का आपको जो है एक्टिव इंडेक्सिंग में रखना है, उसके बाद आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना है, तो वो मे बी S3 में रख देंगे. फिर जब क्वेरी आएगी अपने आप देखेंगे अच्छा 3 दिन से पुराना डेटा चाहिए तो S3 से पुल करेंगे, जस्ट इन टाइम क्वेरी रन करके आपको रिजल्ट दे देंगे. तो क्वेरी विल ऑब्वियसली बी स्लोअर, but that is again an acceptable trade-off depending on how you want to configure for your cost and performance. Right,
ये कोल्ड स्टोरेज होता है, एंड द आर्काइवल इज विच इज नॉट ऑटोमेटेड, कि आपने और भी अल्ट्रा लो कॉस्ट टेप स्टोरेज पे डाल दिया डेटा, राइट, कि भैया वो तो निकालना हुआ तो मैनुअली ही एफर्ट करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटेड तरीके से नहीं निकलेगा। सो इसमें कॉस्ट इज इवन लोअर, बट देन वो ऑटोमेटेड तरीके से फिर आपकी क्वेरी आंसर नहीं करेगा। दिस इज जनरली एक्सेप्टेबल ओनली फॉर कंप्लायंस वाली जो चीजें होती है, भाई 1 साल का डेटा रखना है, उस पर क्वेरी किसी को नहीं करना, वो जब ऑडिटर आएगा उसको ही दिखाना होगा बस, तो ठीक है उस समय निकाल के दिखा देंगे। राइट, फॉर दिस यू कैन देन डू अल्ट्रा लो कॉस्ट टेप स्टोरेज, गया डेटा, राइट। Then the next aspect of log ka cost is data transfer cost. Right, now this is an interesting thing because especially if you're using paid vendors for your log management, this is not a cost जो उनके बिल में रिफ्लेक्ट होगी, right? This is a cost जो आपके AWS के बिल में, आपके क्लाउड के बिल में रिफ्लेक्ट होगी, right? And what is this cost? This cost is the cost which you incur for sending data to your log aggregation system, right? And ये particularly अगर आप थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे हो, उसमें आप ओवर द इंटरनेट डेटा भेज रहे हो, तो ये होती है काफी सिग्निफिकेंट। इफ यू आर यूजिंग लेट्स से इलास्टिक यूज कर रहे हो, आपके अपने इंफ्रा में इलास्टिक चल रहा है, तो ऑल द डेटा ट्रांसफर इज हैपनिंग विद इन योर वीपीसी, राइट, एंड ओवर अ प्राइवेट नेटवर्क, तो उसमें भी कॉस्ट होती है, बट मच लेस कंपेयर्ड टू इफ यू आर सेंडिंग द डेटा ओवर पब्लिक नेटवर्क टू अ थर्ड पार्टी, राइट। एंड इट इज नॉट अबाउट कौन सा थर्ड पार्टी यूज कर रहे हो, ओवर द इंटरनेट जा रहा था, आपका क्लाउड प्रोवाइडर पैसे ले रहे हैं, राइट। एंड यूजुअली इसको मिस करने के चांसेस लोगों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगेन बिकॉज वो लॉग प्रोवाइडर के बिल में नहीं दिख रहा होता, और क्लाउड प्रोवाइडर का बिल इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसमें क्या क्या देखोगे जाके तो पता ही नहीं लगता कि ये भी कॉस्ट है, ठीक। बट इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इट यूजुअली इज प्रिटी सिग्निफिकेंट, राइट। जैसे AWS के केस में दे चार्ज समथिंग लाइक 10 cents per GB फॉर डेटा ट्रांसफर ओवर पब्लिक इंटरनेट, राइट। Now you can do simple maths, आपका AWS में कितना खर्चा आएगा वर्सेस आपका लॉग प्रोवाइडर जो है डेटा इंजेक्शन का कितना पैसा ले रहा है, right? So this is data transfer. Then how do you format your logs? That is also something which we can look at. Although इसको मैं प्राइमरीली कॉस्ट रीजन से देखने का एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट रिलेटिवली कम होता है, इसके बाकी बेनिफिट ज्यादा होते हैं, राइट, बट इसका कॉस्ट पे भी एक इम्पैक्ट होता है। तो शुड नो कि अगर इन एनी केस आप कंसिडर कर ही रहे हो, लॉग फॉर्मेट्स इवैल्यूएट कर ही रहे हो, तो कीप एन आई ऑन व्हाट इज द कॉस्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज एज वेल, ठीक। एंड एज विद लॉग्स देयर आर अ फ्यू ऑप्शंस वी हैव। वन इज लाइक प्लेन टेक्स्ट सिंपल अनफॉर्मेटेड लॉग्स, कि जो भी लिखा है सिंपल लिख दिया, उसमें कोई स्ट्रक्चर अज्यूम्ड नहीं है या स्ट्रक्चर इन्फोर्स्ड नहीं है, right? So developers can write whatever they want to write. The most flexible, but also relatively the most inefficient. And inefficient from two perspectives. Cost perspective से भी inefficient होता है, automation perspective से भी inefficient होता है. And I will stress more on the automation impact. Cost impact फिर भी relatively कम होता है. The lost ability to optimize, that cost is pretty high, because अगर आपके log structured हैं, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन ऑन टॉप ऑफ दोज लॉग्स, जिससे आपकी डेवलपर प्रोडक्टिविटी, टीम प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहेगी, आपकी एबिलिटी टू ट्रबल शूट इन केस ऑफ इंसिडेंट्स विल बी मच बेटर इफ यू हैव स्ट्रक्चर्ड लॉग्स, राइट। सो दोज शुड बी द मेन ड्राइवर्स। आपका मेन मोटिवेशन टू डू कौन सा फॉर्मेट ऑफ लॉग्स करना है शुड बी दिस, कि हम क्या ऑटोमेशन करेंगे अगर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड लॉग्स होंगे तो, right? अगर आपके पास ऑटोमेशंस का क्लियर रोड मैप नहीं है, तो फिर स्ट्रक्चर्ड लॉग पे एफर्ट करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप कर लोगे और कुछ पर्पस अचीव नहीं होगा, लेट्स से आपने जेसॉन लॉग्स करवा दिए, सब डेवलपर्स ने कर लिया, फिर हुआ कुछ नहीं, फिर उसका बस वो एक गंदा सा फॉर्मेट आने लग गया, राइट। अब उसको पढ़ने में और भी दिक्कत होती है और फायदा कुछ दिख नहीं रहा, राइट। तो शुड हैव वेरी क्लियर आइडिया ऑफ कि क्यों कर रहे हैं हम, एंड फिर उससे क्या करेंगे, राइट। अब क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि इफ यू हैव स्ट्रक्चर्ड लॉग्स, right, you can then write queries for certain conditions, like those queries will be easier to write. For example, आपको इंडिकेट करना है कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आई है, उसके लिए लॉग है वर्सेस जनरल इंफॉर्मेटिव लॉग नहीं है, राइट। तो अब वो एक की आपने बना दिया, उस की के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, आप उस पर कंडीशन लगा सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सेप्शन के लिए आपको अलर्ट लगाना है, एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सेप्शन के लिए, राइट, वो आप मच इजियर लगा सकते हो। जनरल लॉग लाइन्स में डिफिकल्ट होता है, right? So there are automations like these that you can do. Rate limiting type की
अलर्ट्स लगा सकते हो कि भाई ये टाइप की एंट्री लॉग में 1 मिनट में 5 बार से ज्यादा आई तो मेरे को बता देना। एक आधी बार तो आ जाती है, जैसे नेटवर्क एरर आई कुछ, राइट। अब 1 घंटे में 4-5 नेटवर्क एरर आ गई, इज ओके, हो जाता है, राइट। 5 मिनट में 10 बार आ गई तो भाई अलर्ट कर दो मेरे को, राइट, कुछ प्रॉब्लम है। तो क्वेरीज लाइक दीज will be much more easy to implement, much more efficient, and then you can set up alerts on these, right? ग्राफ्स डैशबोर्ड बना सकते हो आप अलर्ट्स के, राइट। वो लॉग लाइंस में मैन्युअली स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आपने ग्राफ बना दिया कि कितने नेटवर्क एरर्स आए हैं, राइट। सो वो सारी चीजें आप कर सकते हो एफिशिएंट फॉर्मेट से। एंड देयर आर टू मेजर फॉर्मेट्स दैट वी हैव, वन इज JSON which everybody knows, right, and the other is relatively less well known, नया है रिलेटिवली, इट्स कॉल्ड logFMT, अजीब सा नाम है, LOGFMT, राइट। एंड logFMT कैसा दिखता है? इट इज सिंपल की वैल्यू पेयर्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस, राइट। तो काफी कुछ JSON जैसे, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि JSON में यू हैव अ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स लाइक वो कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो सब इसमें नहीं होते। तो द फॉर्मेट इज रिलेटिवली क्लीनर, इजियर टू रीड फॉर ह्यूमंस एज वेल। JSON के साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट इफ योर लॉग्स आर बीइंग प्रिंटेड इन JSON फॉर्मेट, तो वो हमारी आंखों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है JSON इंटरप्रेट करना। विद logFont द थिंग इज बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, वो ज्यादा फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स नहीं होते, तो ह्यूमन के लिए पढ़ना बड़ा इजी होता है, एंड इट इज इजी टू इंटरप्रेट फॉर मशीन्स एज वेल, right? So it gives you the best of both worlds in some sense, right? It does impose one restriction, which in my personal opinion is a good restriction. It does not allow nested structures, which JSON does, right? So JSON में की वैल्यू भी JSON हो सकती है, उसमें फर्दर नेस्टिंग हो सकती है, right? Which is good for general data transfer, data encoding purposes, but I think for logs it is a bit of an overkill, right? तो logs में तो logFMT enforces कि बस आपको एक ही लेवल मिल रहा है, की है, वैल्यू है, वैल्यू हैज टू बी सिंपल प्लेन स्ट्रिंग और अ नंबर, राइट। तो उसमें फर्दर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, सो विच इज at least in my personal opinion a good thing, but you can evaluate JSON करना है, logFMT करना है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, right? जो स्ट्रक्चर्ड लॉग आप करना चाहो कर सकते हो। व्हाट्स द टाइम? 1:06, हाँ ठीक है। हाँ, now let's come to metrics, right? The good thing about metrics is that logs के लिए हम इतना परेशान हो रहे थे कि logs बहुत बदनाम है, metrics सबसे कम बदनाम है, क्योंकि मैट्रिक्स में गंदगी मचाना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। जितना इजी है लॉग्स में गंदगी मचाना, उतना मुश्किल है मैट्रिक्स में गंदगी मचाना। उसका रीजन ये है कि मैट्रिक्स इनहेरेंटली बहुत एफिशिएंट होते हैं। द वे मैट्रिक्स वर्क इज, लेट्स से यू आर मेंटेनिंग अ काउंटर, 1 मिनट में कितनी रिक्वेस्ट आई, राइट। नाउ द डेटा इज एन इंटीजर, राइट। इफ यू आर स्टोरिंग इट ऑन अ 64-bit मशीन, 64-bit फॉर्मेट में, योर डेटा इज ऑलवेज 64-bit नंबर, राइट। 1 रिक्वेस्ट आए या 1 लाख रिक्वेस्ट आए या 1 करोड़ रिक्वेस्ट आए, योर डेटा का साइज इज 8 बिट्स ओनली, 8 बाइट्स, सॉरी, 64-bit इंटीजर रख रहे हैं तो 8 बाइट्स का इंटीजर है, राइट। अनलाइक लॉग्स जिसमें आपने हॉट पाथ में डाला तो ज्यादा लॉग लाइंस प्रिंट हो गई, राइट। सो वो इनहेरेंटली एफिशिएंट रहता है, तो इसीलिए इसमें जनरली वैसे एक्सप्लोजन नहीं होती है डेटा की या कॉस्ट की, राइट। बट स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम जनरली होती है विद the libraries that we use, right? Metrics generally speaking हम अपने हाथ से कम जनरेट करते हैं। most of the times metrics are generated by some library or some tool that we are using, right? Prometheus का कोई स्क्रैपर लगाया है हमने, या कोई सिस्टम है और जो मेट्रिक्स जनरेट कर रहा है, वहां से करते हैं मेट्रिक्स जनरेट, उनको कैप्चर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, राइट। MySQL की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, Nginx की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, JVM के मेट्रिक्स हैं, all these metrics are generated by some system, we are capturing them, and यहाँ पे क्या potential problem होती है that any system by design will want to give you a lot of information। एक अच्छा open source project होगा, एक अच्छा tool होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा metrics expose करना चाहेगा, so that you can get more and more information about its internal state, right? But आप सारे use कर रहे होगे वो जरूरी नहीं है, right? So it is good for the system to generate a lot of metrics. It may not be a great idea for you to ingest all the metrics, right? आप डीप जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डीप नहीं जा रहे हो तो बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि द एनालिटिक्स साइड इज आल्सो सम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वी आर यूजिंग। कोई ग्राफाना को कोई बना बनाया डैशबोर्ड हमने इंपोर्ट किया, राइट, इलास्टिक सर्च की मॉनिटरिंग करनी है,
इलास्टिक सर्च एक्सपोर्टर आता है, इलास्टिक सर्च का डैशबोर्ड आता है, दोनों लगाए हमें दिखने लग गया. व्हाट वी डोंट लुक एट इज कि उसने 10,000 मैट्रिक्स जनरेट किए थे, इसने 50 मैट्रिक्स ही यूज किए हैं. राइट, सो दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज फॉर मैट्रिक्स कम्स, कि देख लो कि कितने यूज हो रहे हैं, बाकी फिल्टर आउट कर दो, डोंट इंजेस्ट देम एट ऑल. And this will generally save a significant amount of money, you will realize. In practice 80 to 90% metrics unused होते हैं. Right, so that is one area. The other is unused labels. Right, unused labels को समझने के लिए ये example देखते हैं. So we have two time series here. हमारा metric का नाम है HTTP calls total. Right, इसमें दो labels हैं, service is checkout and client is this IP address. Right, अब पहली बात समझने की, मेट्रिक का नाम चाहे एक हो, ये दो अलग अलग सीरीज हैं. So हमारा मेट्रिक सिस्टम इज गोइंग टू ट्रीट देम कंप्लीटली सेपरेट. स्टोरेज कॉस्ट दो के हिसाब से लगेगी या एक के हिसाब से नहीं लगेगी. राइट, एंड देयरफॉर वी कैन सी कि हमने बिना सोचे अगर आईपी एड्रेस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था यहाँ पे. राइट, सो गिव्स अस एन आइडिया, क्योंकि आईपी एड्रेस की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं. राइट, सो वी आर जनरेटिंग दैट मेनी नंबर ऑफ सीरीज, एंड हमारे लिए किसी काम का नहीं है तो इसको हटा दो. राइट, सो दिस इज समथिंग दैट कैन अगेन डिपेंडिंग ऑन कि वो जो हमने लेबल रखा हुआ है, जो हटाने का कंसिडर कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यूज कितनी है. अगर उसकी डिफरेंट वैल्यूज 2 ही हैं तो 50% रिडक्शन होगा. अगर उसकी डिफरेंट वैल्यूज 10,000 है तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ रिडक्शन वी विल अचीव. राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन लुक एट मैट्रिक्स. इसके बियॉन्ड जनरली मैट्रिक्स में कुछ बहुत ज्यादा जानने का होता नहीं है. I mean, there are things that we can do, but most of them are like automatically taken care of. Particularly अगर आप storage format के around research करोगे तो you'll get to know Gorilla format होता है, delta of delta encoding होती है. Those are all extremely efficient encodings in their own right. वो इतना ज्यादा compress कर देते डेटा को कि उसके beyond उसमें फिर further research करने का फायदा practically बचता नहीं है हमारे लिए. राइट, सो इसमें वो डायरेक्शन में जाने का फायदा नहीं है. आप सिंपली देखो कितने मैट्रिक्स इंजेस्ट कर रहे हैं, कितने यूज कर रहे हैं, एंड कौन से लेबल्स हैं जो हम ड्रॉप कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू ट्रेसिंग. ट्रेसेस की द गुड थिंग इज दैट दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट, आपका कुछ प्रॉब्लम आई है, इंसिडेंट आया, उसका आपको ट्रेस मिल जाता है, तो दिस गिव्स यू सो मच इनसाइट कि मोस्टली आप वहां से फिगर आउट कर पाते हो प्रॉब्लम क्या है. Right, but the downside is that this is also a lot of data, right? And आपके cost contribution में overall tracing का contribution generally सबसे ज्यादा होता है. Like so much so that logs में sampling की तो हमने बात करी, बहुत लोग नहीं करते हैं. Tracing में sampling बहुत सारे लोग करते हैं. Right, इसका volume generally इतना ज्यादा होता है कि many organizations तो they just can't ingest all the traces. मतलब वो possible ही नहीं होता उनके लिए, बिना sampling के तो हम चला ही नहीं पाएंगे. Right, इतना volume of data है. So sampling is generally much more well understood here. एक concept आपको बताता हूँ important यहाँ पे समझने के लिए. There are two kinds of sampling that we can do here. One is head sampling and the other is tail sampling. Right? इन दोनों में क्या difference है? Anybody who has an idea of the difference between head sampling and tail sampling? We have Mike. So in head sampling, we decide to show the rate at the start of the span. And in tail-based sampling, what we do after the completion of span, we decide to record it or not based on our sampling as well. Yeah. Yes. Perfect answer. I'll just repeat it for everybody's understanding. So tracing होती क्या है? Particularly distributed tracing की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. Distributed tracing is कि एक हमारे पास request आई. राइट, अब उस रिक्वेस्ट को सर्विस करने के लिए हमारी लेट से 5 माइक्रो सर्विसेज इन्वॉल्व थी. माइक्रो सर्विस ए पे रिक्वेस्ट आई, माइक्रो सर्विस ए ने बी को इंटरनली कॉल किया, बी ने सी और डी को कॉल किया, डी ने ई को कॉल किया. राइट, तो किसने किसको कॉल किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि 5 माइक्रो सर्विसेज इन्वॉल्व थी. राइट, और हर माइक्रो सर्विस ने उस रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए लेट से 4 स्टेप्स एग्जीक्यूट किए. मतलब सबने अलग अलग किए हुए हो सकते हैं, बट सबने कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूट किए. राइट, now each step that got executed by any microservice is called a span in tracing का terminology. Right, तो हर सर्विस ने कुछ स्पैन्स प्रोड्यूस किए. सर्विस ए के पास रिक्वेस्ट थी, उसने 4 काम किए, तो हर काम का एक स्पैन बन गया, तो 4 स्पैन उसने जनरेट किए. सर्विस बी ने सिमिलरली 4 स्पैन जनरेट किए, सर्विस सी ने 5 स्पैन जनरेट किए.
राइट, ये सबको इकट्ठा कर दे तो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेस बन जाता है, राइट। नाउ द थिंग इज दैट दिस इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड इंडिपेंडेंटली। हर सर्विस अपना अपना काम कर रही है, वो अपने अपने स्पैन्स जनरेट कर रही है। उस सर्विस को नहीं पता बाकी स्पैन्स क्या है इस ट्रेस में, राइट, उतना कंटेक्स्ट लेके नहीं चलते वो। तो सब क्या करते हैं, सब अपना जनरेट करते हैं, एक बैकएंड सिस्टम के पास फेंक देते हैं कि लो इसे स्टोर कर लो, राइट। सबको एक ट्रेस आईडी पता होता है, तो वो ट्रेस आईडी प्रोपोगेट होता है, वो सेम ट्रेस आईडी के साथ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जो बैकएंड सिस्टम है वो स्टिच करता है सारी इंफॉर्मेशन, और फिर जब आप क्वेरी करते हो तो वो एक ट्रेस आईडी के सारे स्पैन्स अक्रॉस ऑल माइक्रो सर्विसेज निकाल के आपको दे देता है, राइट। दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग वर्क्स एट ए वेरी हाई लेवल, राइट। नाउ जब सैम्पलिंग करना होता है, लेट्स से सर्विस ए को सैम्पलिंग करना है, राइट, तो अगर वो आपकी सर्विस ए कि जिस पॉड ने वो रिक्वेस्ट सर्व करी है, अगर वो पॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैम्पलिंग करना, तो वो क्या कर सकता है, वो बस अपने अपने स्पैन्स को देख के उसको डिसाइड करना रहेगा कि मुझे सैम्पलिंग करनी है कि नहीं करनी है, एज इनके मुझे ये ग्रुप ऑफ स्पैन्स रखना है कि नहीं रखना है। उसको नहीं पता बाकियों में क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या होगा, राइट, वो कंटेक्स्ट उसके पास नहीं है, राइट। मान लो हमने सिंपल एल्गोरिथम लगाया कि 5% ट्रेसेस रखने हैं, 95% नहीं रखने हैं, तो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, 5% में आ गया तो बोलेगा भाई ये रख लो, राइट। अब एक चीज यहाँ पे जरूर होती है कि अगर उसने बोला कि रख लो, तो वो बाकी सबको वो इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट कर देता है कि सैम्पलिंग डिसीजन फॉर दिस ट्रेस हो चुका है एंड द डिसीजन इज कि रखना है, या सैम्पलिंग डिसीजन हो चुका है एंड द डिसीजन इज कि नहीं रखना है, राइट। तो बाकी लोग फिर उसी डिसीजन को फॉलो करेंगे। तो द गुड थिंग इज यू वोंट हैव ब्रोकन ट्रेसेस, कि कुछ स्पैन्स आए कुछ स्पैन्स नहीं आए, वैसा नहीं होगा जनरली, राइट। बट द डाउन साइड इज कि सर्विस ए ने बोला नहीं रखना, सर्विस बी ने काम अपना किया और कुछ एरर आ गई, नाउ सर्विस बी वांटेड की रखना था, एरर आई है, बट अब वो डिसीजन नहीं ले सकती, राइट। तो वो आप नहीं रखोगे क्योंकि डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन मेड एंड दिस इज कॉल्ड हेड सैम्पलिंग। द बेनिफिट इज की एफिशिएंट होती है, सिंपल होती है, क्योंकि एक लोकल डिसीजन लेना है, आप सिंपल लॉजिक लगा सकते हो, 5% वाला रूल, 10% वाला रूल, जैसे भी आपको लगाना है, राइट। तो एफिशिएंट होता है, सिंपल होता है, बट द डाउन साइड इज दैट यू मे लूज यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट। टेल सैम्पलिंग कैसे काम करता है कि हर कोई जनरेट करेगा, हर कोई कैप्चर करेगा, बैकएंड को भेजेगा, फिर बैकएंड को जब पूरा ट्रेस मिल जाएगा फिर वो डिसाइड करेगा कि अभी से रखना है कि नहीं रखना। सो बैकएंड विल हैव अ ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ दैट ओवरऑल ट्रेस, जिसके बेसिस पे वो बेटर डिसीजन होपफुली ले सकते हैं, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड टेल सैम्पलिंग, राइट। सो यू हैव टू स्ट्रेटजीज ब्रॉडली अवेलेबल, कौन सा यूज करना है आप चूज कर सकते हो। ऑब्वियसली सुनने में लगता है टेल सैम्पलिंग बेटर है, जनरली प्रेफरेबल है भी, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू कॉन्फिगर इट प्रॉपर्ली। अगर आपको 5% वाला ही रूल लगाना है तो यहाँ लगा लो या वहां लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो अनलेस योर बैकएंड इज इंटेलिजेंट इन सम सेंस दैट इट कैन मेक यूज ऑफ द एडिशनल कंटेक्स्ट अवेलेबल, टेल सैम्पलिंग का तभी फायदा होगा। अगर एडिशनल कंटेक्स्ट यूज नहीं कर रहे तो टेल सैम्पलिंग का कोई फायदा नहीं है, राइट। एंड रिटेंशन अगेन एंड डेटा ट्रांसफर कॉस्ट अगेन हमने डिस्कस कर लिया है, इसको वापस से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, राइट। तीनों हमने पिलर्स मोस्टली डिस्कस कर लिए हैं। देयर आर सम मोर एडिशनल टिप्स व्हिच आई वुड शेयर, किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होते बट जनरली यूजफुल हैं। वन इज टू ट्राई टू यूज मोर मेट्रिक्स एंड लेस लॉग्स, राइट। अब इसका क्या मतलब है, आप कुछ लॉग लाइंस जब प्रिंट कर रहे हो तो अगेन बिकॉज मोस्ट ऑफ अस एज डेवलपर्स हैव लर्नड टू use printf during our programming 101, but unfortunately we have not learned to generate metrics, right? तो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट वो सीख लो, बहुत यूजफुल स्किल है टू डेवलप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी वांट टू कैप्चर इन लॉग्स कैन एक्चुअली बी इजीली कैप्चर्ड इन मेट्रिक्स, राइट। एक पर्टिकुलर टाइप का एरर आया, कितनी बार आया वही कैप्चर करना है ना, तो मेट्रिक बना लो उसका, राइट। एंड द गुड थिंग इज कि मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट आर स्ट्रक्चर्ड, तो उनका ग्राफ बनाना इजी होता है, उन पे अलर्ट लगाना इजी होता है, एंड डेटा एक्सप्लोड नहीं करेगा आपका। 1000 बार भी एरर आया तो वो बस एक वो नंबर 1000 स्टोर कर लेगा, कीप सम की इंफॉर्मेशन इन लेबल्स, आपको पता लग जाएगा किस टाइप की एरर आई है, राइट। सो योर सिस्टम्स विल बी मच मोर ऑब्जर्वेबल एट मच लेस द कॉस्ट if you are able to use metrics in place of logs. Of course हर जगह नहीं होता, logs have their own place, but generally try to see कि यहाँ पे log की जरूरत है या metrics से काम चल जाएगा, right? थोड़ा learning की जरूरत होती है, थोड़ा education की जरूरत होती है, but if done well, this itself can bring your cost इतना down कि आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? The other is be cognizant of data transfer costs, and if possible try to bring your observability on-prem.
मच मोर एफिशिएंट। फिर आप वॉल्यूम ऑफ डेटा के बारे में चिंता नहीं करोगे, फिर आप परफॉर्मेंस लेटेंसी को लेके आपको मच बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, राइट। ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप अदर थिंग्स इनटू कंटेक्स्ट एज वेल, कितना आपके पास ये ऑप्शन है भी या नहीं भी है, बट इफ यू हैव इट ट्राई टू एक्सरसाइज इट, देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट, राइट। एंड द थर्ड इज स्मार्ट सैम्पलिंग व्हिच वी हैव डिस्कस थोड़ा। तो क्यूब एपीएम जो मैं बना रहा हूँ उसका वन ऑफ द की फीचर्स इज दिस स्मार्ट सैम्पलिंग। तो हमने हेड सैम्पलिंग वर्सेस टेल सैम्पलिंग डिस्कस किया, तो क्यूब एपीएम एक्चुअली डज टेल सैम्पलिंग by keeping a lot of context while making a decision। तो कैसे करते हैं कि the fundamental idea is कि most of the requests that are hitting our systems वो ठीक ठाक चल रही हैं, probably 95% of the requests are working under normal parameters, right। तो उनका ट्रेसिंग हमें particularly useful नहीं है। देर आर अ फ्यू रिक्वेस्ट जिनमें कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ लेटेंसी हाई थी, कुछ एरर थी या कुछ और कंडीशन थी, वो वाले रिक्वेस्ट के ट्रेसेस हमारे लिए यूजफुल हैं, राइट। सो क्यूबीपी में जब सैम्पलिंग करते हैं तो ऐसे रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते कि 5% कर लो, 10% कर लो, पूरा ट्रेस देखते हैं, उसका हर एक स्पैन को एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं कि इसके सारे स्पैन्स नॉर्मल हैं या कहीं पे कुछ गड़बड़ है। अगर सारे स्पैन्स नॉर्मल है तो उसको विद ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट। जिसमें सारे स्पैन्स नॉर्मल है उसका लेट्स से 99% डिस्कार्ड कर दिया, सिर्फ 1% रख लिया, राइट। जहां पे एरर आई है, कुछ और कंडीशन है, उनको फर्दर बकेटाइज कर लिया कि किस टाइप की कंडीशन है, एंड हर टाइप की कंडीशन के लिए हमने से 10% 20% सैंपल्स रख लिए अलग अलग, राइट। सो कीप्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंटेक्स्ट ताकि आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हर टाइप की एरर कंडीशन का मिल जाए, and your volume of data is still much lesser because most of the times आपका जो नॉर्मल चीजें थी वो आपने डिस्कार्ड कर दी, राइट। सो जो अगर आप टेल सैम्पलिंग यूज करो तो ट्राई टू फाइंड अ स्मार्ट इनफ एल्गोरिथम जो कि एक्चुअली फिर उसको एफिशिएंटली यूज कर पाए, सो दैट इज द बॉटम लाइन हियर, राइट। रिपीट ऑफ जिससे स्टार्ट किया था, अगेन बाकी सब टैक्टिक्स भूल जाओ, अगर ये कर पा रहे हो तो बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहेगी। आप अकेले नहीं ड्राइव कर रहोगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, आपकी पूरी टीम साथ में कंट्रीब्यूट कर पाएगी, ओन कर पाएगी। Yep. So that brings me to the end of the talk. Any questions we have, we can take those. So on the front of data transfer costs, like, are the exporters not that intelligent? Like, they can reduce the number of bytes sent. They can use some efficient data formats and minimize the data transfer cost themselves, rather than us doing the JSON and other log. हाँ, so see, जो बेसिक डेटा कंप्रेशन होता है वो तो हर कोई करता ही है। सो फॉर एग्जांपल लॉग्स का डेटा अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो अनकंप्रेस्ड डेटा तो जनरली नहीं ट्रांसफर करते, gzip तो करते ही हैं, राइट। बट द थिंग इज gzip करके भी डेटा का कुछ तो वॉल्यूम है ही, राइट। एंड उसको अगर आप अगेन AWS के नंबर्स अगर मैं स्पेसिफिकली कोट करूं, वट एवर इज योर वॉल्यूम ऑफ कंप्रेस्ड डेटा, अगर आप उसको ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर कर रहे हो तो यू आर बीइंग चार्ज एट 10 cents per GB। अगर आप उसको प्राइवेट नेटवर्क पे ट्रांसफर कर रहे हो तो यू आर बीइंग चार्ज एट 0 cents per GB if it is in the same availability zone, 1 cent per GB if you are cross AZ। तो ब्लेंडेड अगर मैं मान लूं ½ cent per GB एवरेज करके आ जाता है, तो ऑन वन हैंड यू आर पेइंग 10 cents per GB, ऑन द अदर हैंड यू आर पेइंग ½ cent per GB, तो 95% आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी। तो gzip में डेटा कम होगा बट वो कम पे भी ट्रांसफर तो हो ही रहा है, राइट। एंड यूजुअली लॉग्स का डेटा, ट्रेसेस का डेटा इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है वो कंप्रेस करके भी वो GBs एंड TBs में आता है। अनकंप्रेस डेटा तो ट्रांसफर करने का इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब वो तो मतलब आप और मैं अगर मैनेज करें तो फायर हो जाएंगे हम एक दिन में। In generally, collectors and aggregators for a model आप उसमें काम करते हैं, where collectors को ये सारे decisions नहीं लेने होते हैं। हाँ, कंप्रेस करना है या फिर क्या information shed off करनी है, it's actually taken by the एग्रीगेटर। and then it is in a compressed format, it is sent wherever it's located on the. हाँ, Anyone have questions? Anything related to topic, your topic? Because he is a master in this.
Nobody. So, The concept I have seen multiple organizations using different concepts for some keep it to error only in production, some keep it to intent only, and then while ingesting they decide whether they want to put this info level or into cold storage and the error level, the hot storage. What is the best strategy for it? great question. मैं probably 2 minutes ज़्यादा ले लूँगा, but I believe everybody will find it informative enough that is in mind. एक स्टेप पीछे लेता हूँ. मैंने जब अपना करियर शुरू करा था तो डेवऑप्स नहीं होता था. कैसे होता था कि हम कोड लिखते थे, अपने लोकल पे चलाते थे, सब टेस्ट कर देते थे और एक डिप्लॉयमेंट टीम होती थी, उनको दे देते थे कि अब ये प्रोडक्शन पे डाल दो. प्रोडक्शन सर्वर का हमें एक्सेस नहीं होता था फॉर द राइट रीजन, एंड फिर वो कोड उन्हें दे दिया, फिर वो चलाते थे. एंड प्रोडक्शन पे अप टाइम, परफॉर्मेंस, ये सब एज अ डेवलपर मेरा कंसर्न नहीं होता था, या उनका कंसर्न. एंड दिस वाज अ ब्रोकन मॉडल. क्यों? क्योंकि कोड लिखा हुआ मैंने है, राइट. परफॉर्मेंस उन्हें मॉनिटर करनी है, मैनेज करनी है. उन्हें पता ही नहीं कोड में क्या लिखा है, मैंने क्या कचरा मचाया हुआ है, तो वो कर ही नहीं सकते, राइट. एंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंग्स यूज्ड टू ब्रेक, क्योंकि मैंने कोई लाइब्रेरी नई यूज कर ली, उन्हें बताया ही नहीं, तो वो डिप्लॉयमेंट हुई, फट गई. अब उन्हें पता ही नहीं भाई क्यों फट गई है, right? So this is why the model was broken, and this is why DevOps came into picture, right? And to understand DevOps का मतलब क्या है, थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाऊंगा. DevOps का मतलब ये है कि that there is a team which is managing certain aspects of production, right? Which is generally speaking आपका infrastructure. So you have a platform team, DevOps team, whatever you call, नाम important नहीं है. They will make sure that you have resources available. CPU अवेलेबल है, मेमोरी अवेलेबल है, स्टोरेज अवेलेबल है, यू हैव ऑल द कॉमन टूलिंग अवेलेबल. ऑब्जर्वेबिलिटी का एक फ्रेमवर्क है जो चल रहा है, लॉग मॉनिटरिंग है, अलर्टिंग है, XYZ एक्सेस कंट्रोल है, ये सब चीजें हैं, राइट. एंड आपको इन अ सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड स्लैश गार्डेड मैनर एक्सेस है ये सब चीज. आपको रन टाइम एनवायरनमेंट की एक प्रोटेक्टेड तरीके से एक्सेस है, आप उसको यूज कर सकते. वो यूज करने के लिए लाइक ऐसे बिल्कुल प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं होता था, बट यहाँ पे मॉडल थोड़ा डिफरेंट है. डिप्लॉयमेंट मैं कर सकता हूँ, डिप्लॉयमेंट नहीं करूंगा, राइट. सारी टूलिंग अवेलेबल है, कंटेनर बन जाएंगे, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी, XYZ सब काम हो जाएंगे, मॉनिटरिंग हो जाएगी, राइट. और जितने में रिसोर्सेज मांगे हैं वो मिल जाएंगे. उसके बाद फिर परफॉर्मेंस मुझे ही ओन करनी है, अप टाइम मुझे ही ओन करना है. प्रॉब्लम आएगी तो मैं ही देखूंगी, क्योंकि मेरा कोड है, मेरी एप्लीकेशन, राइट. कंटेनर नहीं बना, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हुए, वो प्लेटफॉर्म टीम का कंसर्न है, राइट. एक्सेस कंट्रोल में कुछ फट गया, वो उनका कंसर्न है. अलर्ट आना चाहिए था, नहीं आया, अलर्टिंग सिस्टम डाउन है, वो उनका कंसर्न है. बट मेरे कोड ने अलर्ट फायर नहीं किया, वो मेरा कंसर्न है, राइट. एंड सिमिलरली जो हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट की ओनरशिप भी मेरी ही होनी चाहिए एज ए वेंडर. अब टाइम की जैसे मेरी है, परफॉर्मेंस की मेरी है, कॉस्ट की भी मेरी है. तो in my view, the ideal job of a DevOps team, a platform team, is to bring that observability and bring that accountability to everyone. Right? Logs के level से concept बड़ा beautiful है, लेकिन DevOps team कभी नहीं own कर सकती. तो DevOps team कैसे decide करेगी कि क्या log debug में जाना चाहिए और क्या log production, क्या log जो है fatal में जाना चाहिए या तो क्या error में जाना चाहिए. कोड तो डेवलपर लिख रहा है, बिजनेस लॉजिक उसको पता है, सेंट्रल टीम नहीं मैनेज कर सकती, एंड देयरफॉर सेंट्रल टीम को मैनेज करना नहीं चाहिए. सेंट्रल टीम ने एनेबल कर देना चाहिए डेवलपर को, भाई तू जानता है, तू यूज कर, तेरे को जो करना है, तेरी कॉस्ट इतनी आई है, ये तेरा बिल है, तेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा, तेरी एप्लीकेशन इतना रेवेन्यू लाती है, तेरी एप्लीकेशन की ये कॉस्ट आती है, CTO को तू जवाब दे अगर वो सवाल. बियॉन्ड दैट तेरे को सारे डिबग में डालना तो सारे डिबग में डाल, तेरे को सारे एरर में डालना तो सारे एरर में. बिकॉज आई एज अ सेंट्रल टीम कैन नॉट टेल यू, आई कैन पब्लिश अ सेट ऑफ गाइडेंस कि भाई ये जनरल गाइडेंस है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है. एनफोर्समेंट मैं नहीं कर सकता, राइट. बिकॉज देयर इज सफिशिएंट सब्जेक्टिविटी इन कि क्या एरर होता है, क्या डिबग होता है, क्या इन्फो होता है, राइट. पर वो सब्जेक्टिविटी में घुसने का फायदा नहीं होता. बेटर टू लेट द पर्सन हु इज इन चार्ज ओन.